Assalamu alaikum students. Students, today we are going to study box and whisker. Box and whisker can be used for discrete and continuous data both. So we will understand this topic with the help of some examples. So the first question says, in a survey, people were asked how long they took to travel to and from work on average. The median time was 3 hours 36 minutes. The upper quartile was 4 hours 42 minutes and the interquartile range was 3 hours 48 minutes. The longest time taken was 5 hours 12 minutes and the shortest time was 30 minutes. The first question is find the lower quartile. So students, how you find lower quartile if you have given upper quartile and interquartile range? As you know that students, interquartile range is the difference of upper and lower quartile. So let's say if we want to find in first part, if we want to find lower quartile means Q1. So what is IQR? IQR is interquartile range, that is upper quartile minus lower quartile, right? We write Q3 for upper quartile, Q1 for lower quartile. So IQR is given. आप एक और काम करें स्टूडेंट्स, आप सारे या तो जितने भी टाइम आपको दिए हुए या तो आप आवर्स में कन्वर्ट कर लें या मिनट्स में कन्वर्ट कर लें. सो द मीडियन टाइम वाज 3 hours 36 minutes. तो यहाँ मैं लिख देता हूँ मीडियन. यहाँ हम लिखते हैं मीडियन. मीडियन इज 3 hours 36 minutes. तो आप इसको ओवरऑल मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे. 3 × 60 + 36. ओके, so that is going to be 180 + 36. So that is 216. Okay, right students? And then we have upper quartile. What is upper quartile? Upper quartile is Q3 is equals to 4 hour 42 minutes. So that means 240. 240 plus 42 is 282 minutes. And then what is lower quartile? Lower quartile is question. And what is IQR? IQR is given 3 hour 48 minutes. So if you convert 3 hour 48 minutes into minutes, so 3 times 60, which is 180 plus 48, that is going to be 224 minutes. तो आपने एक बार कन्वर्जन कर लेनी है. फिर आपको पता है कि आई क्यू आर क्या होता है. आई क्यू आर होता है Q3 minus Q1 means upper quartile minus lower quartile. तो what is QR? IQR? IQR is 224 is equals to upper quartile क्या था 282 minus Q1. ठीक है, तो यहाँ से आप Q1 को बनाएंगे सब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर. सो 282 minus 224. I made a mistake here students. Is it 224 or 228? Yes, mistakenly I wrote 224. That is not true. Here we have 228 minutes. ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे 228 minutes and then again 282 minus 228. So that is 54. तो ये है स्टूडेंट्स आपका लोअर क्वार्टर. Now look at the next part. Represent the information by a box and whisker plot using a scale of 2 centimeter to represent 60 minutes. तो स्टूडेंट्स आप
जब बॉक्स एंड विस्कर बनाते हैं आपको कुछ वैल्यूज चाहिए होती हैं, वो क्या होती हैं? आप सबसे पहले लोएस्ट वैल्यू देखते हो डाटा की, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू अगर आप क्वेश्चन पढ़ें तो ये दी हुई है, द लॉन्गेस्ट टाइम टेकन वाज 5 hours 12 minutes एंड द शॉर्टेस्ट टाइम टेकन वाज 30 minutes। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखें लोएस्ट 30। बॉक्स एंड विस्कर की तरतीब क्या होती है? सबसे पहले आपने लिखनी है स्मॉलेस्ट वैल्यू, देन आपने लिखना है Q1 मींस लोअर क्वार्टाइल, और लोअर क्वार्टाइल क्या था? दैट वाज 54, अभी हमने फाइंड किया था। फिर अगली अगली बारी आती है Q2 विच इज़ मीडियन की। मीडियन आपको दिया हुआ था क्वेश्चन में 216 मिनट्स। ठीक है, उसके बाद बारी आती है अपर क्वार्टाइल की, तो अपर क्वार्टाइल भी क्वेश्चन में दिया हुआ था 282। उसके बाद आती है लार्जेस्ट वैल्यू, ठीक है, लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट। सो लार्जेस्ट वैल्यू स्टूडेंट्स क्या है? लार्जेस्ट वैल्यू है 5 hour 12 minutes। ठीक है, सो दैट इज 5 times 60, 300 plus 12 which is 312, so that is 312, राइट? अब क्या करेंगे, ये तरतीब आपने लिखनी है, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू, देन Q1 Q2 Q3 एंड देन लार्जेस्ट वैल्यू, राइट? सो लेट्स ड्रॉ अ रियल लाइन। आप यहाँ रियल लाइन बना लें यहाँ पे, ठीक है। अब वो कह रहा था कि 2 सेंटीमीटर को आपने 60 मिनट्स कंसिडर करना है, तो दैट्स मीन इफ वी राइट एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 30, तो आप यहाँ से स्टार्ट कर लें। लेट्स कॉल इट मे बी 0 मिनट्स, 60 मिनट्स, 120 मिनट्स, and then 180 minutes, and then 240 minutes, and then 300 minutes, and then 360 minutes, and so on. So that means this is 1 hour, 2 hour, 3 hour, 4 hour, 5 hour, and 6 hour. That's it. अब सबसे पहले 0 hour, सबसे पहले स्मॉलेस्ट वैल्यू स्टूडेंट्स क्या थी? 30 मिनट्स। 30 मिनट्स मीन्स बिटवीन 0 and 60, तो आप यहाँ पे एक लाइन लगा दें, ठीक है, यहाँ पे आप, ठीक है, जस्ट इन फ्रंट ऑफ 30 आप एक लाइन लगाएं। द नेक्स्ट वैल्यू इज Q1 विच इज़ 54। अच्छा 54 कहाँ पे है? 54 जस्ट बिफोर 60। अच्छा एक आप काम करें स्टूडेंट्स, देखें इसके अंदर कितने बॉक्स आ रहे हैं। देर आर 10 बॉक्स फ्रॉम 0 to 60। ठीक है, तो अगर आपने देखना है कि आपका एक बॉक्स किसके इक्वल है, तो आप क्या करोगे, 60 डिवाइडेड बाई 10 कर दें, तो दैट इज इक्वल टू 6। तो 1 बॉक्स इज इक्वल टू 6। नाउ जस्ट लुक एट द 54। ये क्या हो गया स्टूडेंट्स? जस्ट लुक एट 54। वेयर डू आई राइट 54? जस्ट 1 बॉक्स बिफोर 60। ठीक है, एज आई सेड के 1 बॉक्स इज इक्वल टू 6, तो आप जस्ट 1 बॉक्स बिफोर 60 एक लाइन लगा दोगे। नेक्स्ट लुक एट Q2। Q2 इज 216। 216 कहाँ पे होगा? इट विल बी आफ्टर 180। आपको पता है कि बिटवीन 180 एंड 240 here we have what? Here we have 210 बिकॉज ये 30 का ये है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर इज 30, तो ये 30 मिनट्स हैं, ठीक है ना। तो 180 प्लस 30 इज 210, तो ये है आपका 210 मिनट्स। लेकिन हमने क्या करना है, 6 मिनट्स और हैं, तो क्या होगा, एक बॉक्स आगे आपने लाइन लगानी है, तो कोशिश करें उतनी ही लेंथ हो जितनी पहले थी, ठीक है। Here we have the next line at median, that is Q2। नेक्स्ट आप देखें जो आपकी Q3 है, दैट इज 282। अब 282 कहाँ पे आएगा? Here we have students 240 and 240 plus 30, that is 270। तो 270 का मतलब ये है कि एक बॉक्स 6 का है, ठीक है। तो नेक्स्ट इज 276 एंड नेक्स्ट इज 282। तो जो नेक्स्ट 2 बॉक्सेस के बाद आपने एक लाइन लगानी है, कोशिश करें उतनी ही लेंथ हो। ये देखें
राइट। ये बात आपने स्टूडेंट्स याद रखनी है कि ये 60/10 मीन्स 1 box 6 यूनिट्स। ठीक है। अब लास्ट वैल्यू क्या थी? लास्ट वैल्यू थी 312। तो 312 का मतलब ये है कि 300 ये है, और 12 का मतलब है कि 1 box is 6 यूनिट्स। तो आप क्या करेंगे? 2 box के बाद लाइन लगा देंगे। ठीक है। सो हियर आई हैव, अब ये मैंने कुछ लाइंस बड़ी लगाई हैं, कुछ छोटी लगाई हैं, इसका मतलब क्या है? तो स्टूडेंट्स, ये जो बड़ी लाइंस होती हैं ना, Q1 Q2 और Q3 वाली, इनसे आपने बनाना है ये बॉक्स। ठीक है। और इस बॉक्स को आपने कनेक्ट कर देना है इन विस्कर्स के साथ। ठीक है। these small lines, these are known as whisker, and this box is known as just box. So the whole diagram stands for box and whisker, right? अच्छा, ज़रूरत नहीं है इसके ऊपर लिखने की, लेकिन मैं अगर बता दूं कि ये हमने वैल्यूज़ लिखी कहाँ से हैं, ये कौन कौन सी वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे लिखी हैं, तो आप क्या लिखोगे? ये है स्टूडेंट्स स्मॉलेस्ट वैल्यू 30, ये है स्टूडेंट्स Q1 which is 54, ये है स्टूडेंट्स Q2 which is median which is 216, ये है स्टूडेंट्स Q3 which is upper quartile which is 282 minutes, और ये थी लार्जेस्ट वैल्यू which is 312। दैट्स इट। स्टूडेंट, मैंने आपसे कहा था कि आप क्वार्टाइल्स की मदद से भी स्क्यूनेस बता सकते हैं। अब देखें, ज़्यादा टेल जो बॉक्स एंड विस्कर की बनी है, वो लेफ्ट साइड पे ज़्यादा टेल है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि ये Q2 था, Q2 और ये Q1 था। तो बेसिकली Q2 माइनस Q1 इज बिगर देन द Q3 माइनस Q2। ठीक है। तो जब लेफ्ट टेल ज़्यादा बड़ी होती है तो दैट इज नेगेटिवली स्क्यूड, जब ये टेल ज़्यादा बड़ी होती है तो दैट इज पॉजिटिवली स्क्यूड, और जब ये दोनों बॉक्स इक्वल होते हैं तो आप क्या कहते हो? ये सिमेट्रिकल डाटा है। ठीक है। तो राइट नाउ अगर वो आपसे पूछते हैं कि डाटा कौन सा है, तो आप क्या बताते? नेगेटिवली स्क्यूड बताते। दैट्स इट। दिस वाज द फर्स्ट बॉक्स एंड विस्कर। सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। The following back-to-back stem and leaf diagram shows the cholesterol count for a group of 45 people who exercise daily and for another group of 63 who do not exercise. ठीक है। The figures in brackets, the figures in brackets show the number of people corresponding to each set of leaves। ठीक है। people who exercise, people who do not exercise। फ्रेंड्स, कल हमने 2 क्लासेस दी थी स्टेम एंड लीफ के ऊपर। तो आपको स्टेम एंड लीफ तो बनाना आता है। अब आपको स्टेम एंड लीफ दिया हुआ है। ठीक है। अब देखते हैं कि वो क्या कहता है। पहला स्टूडेंट क्या है क्वेश्चन? गिव वन यूजफुल फीचर ऑफ स्टेम एंड लीफ डायग्राम। स्टूडेंट्स देखें, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं कि जब वो आपसे मेरिट्स, डीमेरिट्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस पूछता है, तो आपने कॉमन सेंस का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना है। तो स्टेम एंड लीफ का क्या फायदा होता है? स्टेम एंड लीफ का फायदा एज कंपेयर टू बॉक्स एंड विस्कर क्या होता है? स्टूडेंट्स देखें, हियर आई हैव द बॉक्स एंड विस्कर डायग्राम। अब इस बॉक्स एंड विस्कर डायग्राम के ऊपर जस्ट फ्यू वैल्यूज आर प्रेजेंटेबल। कौन कौन सी? एक 30, एक 54, एक Q2 अपर क्वार्टाइल द लार्जेस्ट वैल्यू। जस्ट 5 वैल्यूज आर देयर। वेयर आर द अदर वैल्यूज? ठीक है। लेकिन स्टेम एंड लीफ के अंदर आए तो स्टेम एंड लीफ के अंदर पूरे का पूरा डाटा आपके सामने लिखा हुआ होता है। ठीक है। तो आप इसका जब सॉरी बेनिफिट बताओगे, जब स्टेम एंड लीफ का बेनिफिट बताओगे तो आप क्या कहोगे? कि इट शोज ऑल द वैल्यूज। ठीक है स्टूडेंट्स, इट शोज ऑल द वैल्यूज। तो द फर्स्ट बेनिफिट ऑफ, और आपसे पूछ भी एक ही रहा है, इट शोज all the values of data। ये डाटा की सारी वैल्यूज शो कर देता है। ठीक है। नेक्स्ट, find the median and the upper quartile find the median and the quartiles of the cholesterol count for the group who do not exercise। तो स्टूडेंट्स, आपने Q1, Q3, Q2 फाइंड करना है फॉर द पीपल हु डू नॉट एक्सरसाइज। सो जस्ट लुक एट द डाटा हु डू नॉट एक्सरसाइज, तो वो ये हैं स्टूडेंट्स। तो हमें पता है कि जो एक्सरसाइज नहीं करते, पीपल हु डू एक्सरसाइज डेली, एंड फॉर अनदर ग्रुप ऑफ 63 हु डू नॉट एक्सरसाइज। तो स्टूडेंट्स, ये 63 लोग हैं। ठीक है। तो आप 63 लोगों का कैसे फाइंड करेंगे मीडियन? मीडियन फाइंड करना है, जिसको आप Q2 भी कहते हो।
होता है n+1/2 वैल्यू, ठीक है। तो वो क्या होगा 63 + 1/2, तो ये होगा स्टूडेंट 64/2, दैट इज 32th वैल्यू। तो 32th वैल्यू आप यहाँ से काउंट कर लें। तो मैंने आपको बताया था यहाँ से भी आप कर सकते हैं 4 6, ठीक है। तो ये 10, 10 + 13 इज 23, 23 + 4 27 एंड देन 37, बट हमें चाहिए 32। जो दोबारा काउंट करते हैं, ये 10 है एंड 23, 23 के बाद स्टूडेंट्स काउंट करते हैं 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। तो ये लास्ट वाला जो 5 है ये आपका मीडियन है, ठीक है। तो अब मीडियन लिखना कैसे है, ये मेन चीज़ है स्टूडेंट्स, कि मीडियन आपने लिखना कैसे है। तो उसके लिए हमें की को देखना पड़ेगा। ये आपकी की है राइट साइड वाले की, ठीक है। तो ये देखें 81 represents 8.2 in the group who exercise and 8.1 in the group who do not exercise। तो स्टूडेंट्स 81 बेसिकली क्या बन जाता है, 8.1 बन जाता है इस ग्रुप के अंदर। तो इट्स मीन्स हमारे पास है 6 एंड देन 5, तो क्या होगा ये 6.5। सो 6.5 इज माई मीडियन, राइट। 6.5 इज माई मीडियन। तो Q2 क्या है स्टूडेंट्स 6.5। नेक्स्ट था क्वार्टाइल्स, मींस लोअर क्वार्टाइल एंड अपर क्वार्टाइल। उसके लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले मीडियन से पहले वाली वैल्यूज काउंट करते हैं, ठीक है। तो मीडियन से पहले वाली वैल्यूज काउंट करें। ये देखें 10, ठीक है, 13, सो 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपकी हैं, एक्सक्यूज मी, ये मैंने क्या कर दिया है, हाँ 10, 23, 24, 25, 20, सॉरी स्टूडेंट्स 23 यहाँ तक हैं, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, my bad। So the values before median is 31। तो अब आप इनका मीडियन फाइंड करें, ठीक है। जगह कम पड़ रही है हमें, सो हम यहाँ पे कर देते हैं, सेकंड पार्ट में यहाँ कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। So now let's do 31 + 1/2, so that is going to be 32/2, that is 16th value। तो 16th वैल्यू आपकी Q1 है। तो स्टूडेंट Q1 क्या होगा लोअर क्वार्टाइल, 16th वैल्यू, सो 10 एंड देन 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो ये जो वाला जो 4 है ये वाला, ये आपका लोअर क्वार्टाइल है, ठीक है। तो स्टूडेंट इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी 5.4। तो ये हो गया 5.4, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं अपर क्वार्टाइल। अब अपर क्वार्टाइल में भी अगर आप मीडियन के बाद वैल्यूज काउंट करें तो वो 31 ही आएंगी, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अगेन 16th वैल्यू, ठीक है। तो Q3 भी लिख देता हूँ, 16th वैल्यू आफ्टर मीडियन, ठीक है। तो आप आफ्टर मीडियन वैल्यूज काउंट करेंगे। ये 7 फर्स्ट वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये वाला जो 3 है ये आपका मीडियन है, मीडियन से आगे वाली वैल्यूज का जिसको आप अपर क्वार्टाइल कहते हो। तो ये क्या आएगा 8.3, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखोगे 8.3। तो डन स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका median and quartiles, that's it। Next we have, on a single diagram on graph paper, draw two box and whiskers plots to illustrate the data। okay, हम ये करते हैं कि हम
ये क्या प्रॉब्लम हो रहा है? मूव क्यों नहीं हो रही है? वेट, ओ माय गॉड। ओके, नाउ लेट्स मेक टू बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखें, आपने एक डाटा के लिए तो Q1 Q2 Q3 फाइंड कर लिया था, ठीक है। अब हम ये भी देखते हैं कि यू आर गिवन दैट द लोअर क्वार्टाइल, द मीडियन एंड द अपर क्वार्टाइल ऑफ द कोलेस्ट्रॉल काउंट फॉर द ग्रुप हु एक्सरसाइज, वो आपको दी हुई हैं वैल्यूज़, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहले हम बनाते हैं, चलें। अब सबसे पहले आप देखें स्टूडेंट्स, दोनों डाटा के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है? 3.1 इसके अंदर है और इसके अंदर भी 3.1 है। और सबसे लार्जेस्ट वैल्यू क्या है? 10.3, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू आपकी 3.1 है, लार्जेस्ट वैल्यू आपकी 10.6 है, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 10। एनीवे, सो नाउ आई विल ड्रॉ अ लाइन, ठीक है। और लेट्स कॉल इट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। दैट्स इट। अच्छा सॉरी, स्टार्टिंग फ्रॉम 3 था, तो फिर तुम्हारा बहुत अच्छा बन सकता है। स्टार्टिंग फ्रॉम 3 है तो हम इसको कहते हैं 3 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये था स्टूडेंट्स, आपने कुछ वैल्यूज ले ली। अब हम बनाते हैं सबसे पहले किस साइड का? लेट्स मेक फॉर पीपल हु एक्सरसाइज, लेफ्ट साइड का पहले बना लेते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है? दिस वन, 3.1, ठीक है। और सबसे लार्जेस्ट वैल्यू क्या है? 9.4। 3.1 9.4, 3.1 के सामने आप लगाएं लाइन एक छोटी सी, ठीक है। फिर 9.4 के सामने लगाएं लाइन एक छोटी सी, ठीक है। और फिर इन बिटवीन कौन कौन सी वैल्यूज आती हैं? Q2 Q1 Q2 Q3। सो व्हाट इज Q1 फॉर हु एक्सरसाइज? तो ये स्टूडेंट आपका Q1 है, ये आपका क्या है? Q2 है, और ये आपका क्या है? Q3 है। तो 4.25, 4.25। सो ये है आपका 4.1, ठीक है। सो 4.25 इज गोइंग टू बी ओवर हेयर। ये थोड़ा सा, अच्छा, ये मैनुअली लगानी पड़ेंगे हमें, स्केल काम नहीं कर रहा मेरा यहाँ पे। यस, नहीं काम कर रहा, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, Q2 क्या था? Q2 था 5.3। तो 5.3 का मतलब है थ्री थ्री ब्लॉक्स आफ्टर 5, तो ये होगा, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास 6.6, सो 6 ब्लॉक्स आफ्टर 6, तो वो होगा स्टूडेंट्स ये वाला। और क्या करेंगे? यहाँ पे बॉक्स बनाएं Q1 Q2 Q3 पे, और इन बॉक्स को आप अपने विस्कर से कनेक्ट कर दें। विस्कर्स कहाँ होते हैं? सबसे स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू पे, ठीक है। दैट्स इट। नेक्स्ट, लेट्स मेक another box and whisker for the people who do not exercise। तो डू नॉट एक्सरसाइज में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू देखें, अगेन 3.1 है, तो स्टार्ट तो 3.1 से ही हो रहे हैं। सो वो मैं बनाता हूँ, चलें यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, फिर आप नेक्स्ट करें। व्हाट इज़ Q1 स्टूडेंट्स? Q1 क्या था? Q1 था हमारा 5.4, ठीक है। तो आप 5 पॉइंट, इसको कलर चेंज कर देते हैं,
5.4 मीन 4 ब्लॉक्स आफ्टर 5, तो लेट्स से ये है आपका, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास Q2, तो Q2 क्या था 6.5, सो 6.5, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास Q3 विच इज़ 8.3, तो 3 ब्लॉक्स आफ्टर 8। नेक्स्ट है लार्जेस्ट वैल्यू पीपल हु डू नॉट एक्सरसाइज, तो वो है 10.6, ठीक है। फ्रॉम हेयर 10.6, तो 10.6 मीन्स यहाँ पे हम लिखते हैं 11, सो नेक्स्ट वैल्यू इज हेयर 10.6, बट इट्स अ विस्कर, तो हम इसको चलिए यहाँ बॉक्स बना लें, यहाँ भी एक बॉक्स बनाएं और फिर इनको अपने विस्कर्स के साथ कनेक्ट कर दें। तो ये है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा है काम करने वाला, आपको पहले वैल्यूज़ लगा के उनको प्रॉपर डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ who do not exercise, who do not exercise, ठीक है। और देन क्या था who do exercise, तो यहाँ पे लिख देते हैं who do exercise, राइट बच्चों। नेक्स्ट और क्या था, दैट्स इट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपके दो बॉक्स एंड विस्कर थे एक ही डायग्राम के ऊपर, ठीक है। तो जो फर्स्ट वाला है उसकी राइट टेल ज़्यादा है, ये पॉजिटिवली स्क्यूड है। अगर वो आपसे कहता कि दोनों को कंपेयर करें, तो ये पॉजिटिवली स्क्यूड है और ये भी मुझे पॉजिटिव स्क्यूड ही लग रहा है, इनका ये वाला बॉक्स ज़्यादा जो है, तो इसकी लेंथ ज़्यादा है, ठीक है। लेट्स कम टू क्वेश्चन 3। The pulse rates in beats per minute of a random sample of 15 small animals are shown in the following table. Draw a stem and leaf diagram to represent the data. Find the median and quartiles, बार बार मैं interquartile कह रहा हूँ, on graph paper using a scale of 2 centimeter to represent 10 beats per minute. Draw a box and whisker. Plot of the data, right? सबसे पहले हम स्टेम एंड लीफ, अच्छा स्टेम एंड लीफ और बॉक्स एंड विस्कर इकट्ठे भी आते हैं, आपने देखे हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, कभी स्टेम एंड लीफ बना होता है, कभी बनवा के वो आपसे बॉक्स एंड विस्कर फाइंड करवा रहा होता है, ठीक है, बनवा रहा होता है। सो नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेम एंड लीफ बनाएंगे, ठीक है। सो सबसे पहले इफ़ यू लुक एट द रूट नंबर्स, तो सबसे पहले नंबर कौन कौन से हैं, 11, 12, ये मुझे कुछ जाना पहचाना क्वेश्चन लग रहा है, आई थिंक वी डिड दिस क्वेश्चन इन सम प्रीवियस क्लास, यस। 11, 12, 15, 10 भी है, 14 भी है, 16 भी है, 10, 16, 11, सो आई थिंक 10 till 16, राइट स्टूडेंट्स, 10 till 16। तो हम यहाँ बनाते हैं स्टेम एंड लीफ फॉर फर्स्ट पार्ट। स्टेम एंड लीफ, टेन, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट राइटिंग वैल्यूज विद 10, तो 10 के साथ स्टूडेंट्स कौन कौन सी वैल्यू है, 104 है, अगेन 104 है, देन 109 है, सो 104, 104, 109, सो 4, 4, 9, ठीक है। 11 के साथ कौन सी वैल्यूज़ हैं, 115, 117, तो ये भी कैंसिल आउट कर दें, ये भी कैंसिल आउट कर दें, सो 115, 117, ठीक है। नेक्स्ट 12 के साथ हमारे पास है सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू 120, देन 124, 125, तो 045, 045, ठीक है। नेक्स्ट है 3 के साथ
3 के साथ है स्टूडेंट सबसे स्मॉल वैल्यू 132 एंड 134, सो 2 4, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टार्टिंग विद 1 4, तो 1 4 के साथ हमारे पास 2 है और फिर 5 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2, यहाँ पे हम लिखेंगे 5। 1 5 के साथ है आई थिंक ओनली वन वैल्यू, यस 158, सो 1 5 के साथ 8 है, देन है 160 162, दैट्स इट, 0 एंड 2। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ लिख लेते हैं। क्या वैल्यूज़ थी? 3 2 3 2 2 1 2, ठीक है। और की बनानी है तो की मैंने कैसे बताई थी आपको, यहाँ से बनाते हैं। 13, then a line 2 means 132, ठीक है स्टूडेंट्स। ये है आपकी स्टेम एंड लीफ विद अ की। सो फाइंड द मीडियन एंड क्वार्टाइल्स, लोअर क्वार्टाइल अपर क्वार्टाइल। अब हम इसका मीडियन फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स की 15 वैल्यूज़ हैं, तो आप केयरफुली ना इनको ऐड भी कर लिया करें, क्योंकि मिस्टेक तो नहीं है। सो ठीक है, आप इनको ऐड करें, 5 8 10 12 13 एंड 15, दैट्स इट। सो मीडियन फाइंड करना है, तो हम मीडियन कैसे फाइंड करते हैं? मीडियन फाइंड करते हैं हम n plus 1 over 2, so 15 plus 1 over 2, so that is eighth value। तो स्टूडेंट आप एट्थ वैल्यू कहाँ से लिखेंगे? एट्थ वैल्यू 3 5 एंड देन 8, तो दिस 5 इज़ माई मीडियन, ठीक है। तो आप कैसे लिखोगे इस 5 को? इस 5 का मतलब था 1 to 5, सो 1 to 5 इज़ माई मीडियन। नाउ लेट्स फाइंड Q1। तो Q1 स्टूडेंट्स देखें, क्रॉस मेथड भी आप यूज, जब वैल्यूज कम होती हैं आप क्रॉस मेथड यूज कर लें। क्रॉस मेथड क्या मतलब होता है कि आप इन वैल्यूज का अपने मीडियन फाइंड करना है ना, तो आप क्या करें, इसको इससे क्रॉस करें, इसको इससे क्रॉस करें, इसको इससे क्रॉस करें, ठीक है। तो हमारे पास लास्ट में क्या बचेगा? ये 5 बच जाएगा। तो ये 5 है मेरा Q1, तो इसको भी लिख लेते हैं, दैट इज़ 115। और Q3 क्या होता है स्टूडेंट्स? आप इसको कैंसिल करते हो, लास्ट को, ये क्या था, सॉरी, फर्स्ट के साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ अगेन 5, तो ये आपका Q3 है, दैट इज़ 145, ठीक है, दैट्स इट। So the next question says, on a graph paper, using a scale of 2 centimeter to represent 10 beats per minute, draw a box and whisker plot of the data। तो स्टूडेंट्स आपको पता है बॉक्स एंड विस्कर के लिए हमें क्या चाहिए होता है? इसका हम ज़रा बड़ा सा बनाते हैं बॉक्स एंड विस्कर। तो स्टूडेंट स्मॉलेस्ट वैल्यू आपके पास क्या है? स्मॉलेस्ट वैल्यू थी डाटे के अंदर 104, ठीक है, 10 विद 4, तो 104। मैं तरतीब से वैल्यूज़ लिख रहा हूँ। नेक्स्ट वैल्यू क्या होती है? Q1 मीन्स लोअर क्वार्टाइल। तो लोअर क्वार्टाइल आई थिंक 115 था, यस 115 माई लोअर क्वार्टाइल। एंड Q2 विच इज़ मीडियन, तो मीडियन क्या था डाटे का? मीडियन था 1 to 5। और Q3 क्या था? अपर क्वार्टाइल, तो दैट वाज 145, यस। और उसके बाद है लार्जेस्ट वैल्यू। तो लार्जेस्ट कितनी वैल्यू थी स्टूडेंट्स? लास्ट में देखें तो 162 इज़ द लार्जेस्ट वैल्यू, ओके, सो 162। तो अब आपने बनाना है बॉक्स एंड विस्कर। उसने कहा था कि 2 सेंटीमीटर को आपने 10 बीट्स कहना है। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू स्टूडेंट्स आप देखें तो आपके पास क्या है? 104 एंड लार्जेस्ट क्या है? 162, ठीक है। तो हम कहते हैं कि ये 100 है, ये है मेरा 110, ये है मेरा 120, ये है मेरा 130, ये है मेरा 140, देन क्या हो गया है 150, देन 160 एंड देन
70, right? Now look at the value 104. तो where is 104? 104 is 4 box after 100. तो अब क्या कहाँ लगाएंगे? Here is the first whisker, then Q1. तो ये है स्टूडेंट आपका, ठीक है? दिस इज Q1. सो वेयर इज Q2? 125. ये है Q2. Q3 145. ये है Q3. लार्जेस्ट वैल्यू कितनी है? 162. तो वो किधर है? 2 यूनिट्स आफ्टर 6. ठीक है, तो ये है आपका स्टूडेंट बॉक्स, एंड लेट्स ज्वाइन विद दीज लाइंस. दिस मेक्स इट एज अ box and whisker. That's it. Is there any other part in this question? No. So moving on to the last question of today's class. The marks of pupils in a certain class in a history examination are as follows. The marks of people in a physics examination are summarized as follows. ठीक है? Draw box and whisker plots in a single diagram on graph paper to illustrate the marks for history and physics. State one difference which can be seen from the diagram between the marks for history and physics. स्टूडेंट जब आप बॉक्स एंड विस्कर बना लेते हैं तो बहुत सा आइडिया हो जाता है कि आइदर डाटा स्प्रेड डाटा किसका है, जिसका बॉक्स ज़्यादा लेंथ में बड़ा होता है, लॉन्ग, सो उसको हम कहते हैं कि वो डाटा ज़्यादा स्प्रेड है, ठीक है? द लॉन्गर द बॉक्स, द मोर द डाटा स्प्रेड, ओके? सो सबसे पहले हम इस डाटे का, हिस्ट्री के डाटे का Q1, Q2, Q3 और स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है? उसके लिए हमें इसको अरे करना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है? So to array this data, what I will do, history. सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी है आपकी? Starting with 2, I think it is 28, no 27, then 28, then starting with 3, so 33, one more 33, 37, again 30, no, no 37. When we have 38, then we have 39, then that's it. Starting with 40. So the first value starting with 40 is 42, then 48, then 49, starting with 50, 51, 55, 57. That's it. इनको आप काउंट कर लें. ठीक है. द मार्क्स ऑफ पीपल इन अ फिजिक्स एग्जामिनेशन आर समराइज्ड इन बिलो, ठीक है? अब हम हिस्ट्री का सबसे पहले स्मॉलेस्ट वैल्यू, फिर Q1, Q2, Q3 की तरफ जाते हैं. तो मैं सबसे पहले Q2 निकाला करें आप, मीडियन. तो मीडियन निकालने के लिए 13 plus 1 over 2, that is 7. सो सेवन्थ वैल्यू आपने बतानी है इसमें से. तो कौन सी है सेवन्थ वैल्यू?
1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। सो 39th इज़ द सेवन्थ वैल्यू, तो यहाँ हम लिख देते हैं कि ये है मीडियन। अब हमने Q1 निकालना है, तो Q1 के लिए आप क्या किया करें, इसको इसके साथ कैंसिल करें, इसको इसके साथ कैंसिल करें, दरमियान वाली दोनों वैल्यू की एवरेज ले लें। तो क्या आएगा Q1, ओहो, दरमियान वाली दोनों वैल्यूज़ की, वेट, इन दोनों की एवरेज ले लें स्टूडेंट्स, ठीक है। सो 33 प्लस 33/2, दैट इज़ 33। तो Q1 क्या आएगा, 33। नेक्स्ट, अपर क्वार्टाइल Q3, तो आप क्या करेंगे, क्रॉस करें वैल्यूज़, इन दोनों की आपने एवरेज लेनी है, ठीक है। तो दैट इज़ 50। तो स्टूडेंट्स दैट इज़ गोइंग टू बी, okay, so 49 plus 51/2, so that is going to be 50, that's my upper quartile, ठीक है। अब हम स्टूडेंट्स बनाएंगे बॉक्स एंड विस्कर। तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू आप दोनों में देख लें, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू थी 27 हिस्ट्री के अंदर, और यहाँ पे लोएस्ट मार्क्स कितना है, 17, ठीक है। और सिमिलरली हाईएस्ट मार्क्स हैं 74, और यहाँ पे हाईएस्ट कितने हैं, 57, ठीक है। तो एनीवे, लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, आपने 80 लिखना है लास्ट में, और स्टार्ट आप कर लें 10 से, ठीक है। तो लेट्स कॉल इट, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, बल्कि इधर नहीं, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। सो ये है 10 20 30 40 50 60 70 एंड देन 80, दैट्स इट। सबसे पहले हम बनाते हैं हिस्ट्री का बॉक्स एंड विस्कर। तो हिस्ट्री की स्मॉलेस्ट वैल्यू स्टूडेंट थी आपकी 27, ठीक है। तो वेर इज 27, 27 7 बॉक्सेस आफ्टर 30। तो थोड़ा सा ये इसकी सेटिंग ख़राब होगी आज मुझसे, आई डोंट नो व्हाई इज दिस हैपनिंग, ओ माय गॉड, कहाँ गया, यही क्वेश्चन है। तो 7 बॉक्सेस आफ्टर 30, तो लेट्स कॉल इट हेयर। एनीवे 27, और नेक्स्ट वैल्यू है आपकी Q1, दैट इज़ 33। सो स्टूडेंट 27 थी, देखें अब हमारी सारी क्लास ख़राब हो रही है। 27, और फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या थी, Q1 33 थी। सो 33 कहाँ आएगी, यहाँ आएगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी वैल्यू Q2, दैट इज़ 39, तो जस्ट वन बॉक्स बिफोर 40। नेक्स्ट वैल्यू है हमारी Q3, 50। तो यहाँ पे आपने लाइन लगानी है, और लास्ट वैल्यू है आपकी हिस्ट्री में, लार्जेस्ट वैल्यू इज़ 57, तो 3 बॉक्सेस बिफोर 60।
तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप लगा, थोड़ा सा स्टूडेंट इसमें आज प्रॉब्लम है, आई डोंट नो व्हाई, बट लेट्स से इफ आई प्लेस लाइन हेयर, तो आप क्या करोगे, ये बॉक्स है, लेट्स ज्वाइन दिस बॉक्स विद विस्कर्स, दैट्स इट, अल्हम्दुलिल्लाह डन। तो दिस इज हिस्ट्री। सो व्हेन यू विल कम टू द अदर सब्जेक्ट, आई थिंक, ओके, सो फिजिक्स का अब बनाना है आपने स्टूडेंट्स। तो फिजिक्स में सबसे लोएस्ट वैल्यू है 17, तो सबसे लोएस्ट वैल्यू है 17, तो here we have two boxes after 15, तो ये 17 ठीक है, 17। नेक्स्ट वैल्यू है स्टूडेंट हमारी Q1 लोअर क्वार्टाइल 28, तो 28 मीन्स नेक्स्ट वैल्यू है स्टूडेंट्स हमारी Q2 मीडियन 39, तो 39 मीडियन है। नेक्स्ट है Q3 अपर क्वार्टाइल 67, तो ये थोड़ा स्प्रेड ज़्यादा है इसमें, ठीक है, 67। नेक्स्ट लार्जेस्ट वैल्यू है हमारे पास 74, सो दैट्स इट। तो यहाँ एक बॉक्स बनाएं, यहाँ इसे कंप्लीट करें, एंड लेट्स ज्वाइन दिस बॉक्स विद विस्कर्स, ठीक है, दैट्स इट। इसके साथ आप लिखेंगे फिजिक्स। So this is end of today's class, but I think there was one more question. State one difference which can be seen from the diagram between the marks for history and physics. तो स्टूडेंट्स अब देखें, मैंने बताया था कि जिसका बॉक्स ज़्यादा लेंथ में बड़ा होता है वो डाटा ज़्यादा स्प्रेड होता है, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, हैं तो दोनों पॉजिटिवली स्क्यूड है, ठीक है, कंपैरिजन ऐसा नहीं कर देना जो दोनों में एक जैसे ही हो, वो कंपैरिजन नहीं होता स्टूडेंट्स, ठीक है। एक जब नेगेटिव हो एक पॉजिटिव स्क्यूड हो, तो तब आपने कहना है कि एक नेगेटिव स्क्यूड एक पॉजिटिव, लेकिन जब दोनों ही पॉजिटिव स्क्यूड है तो फिर ये आपने नहीं लिखना, ठीक है ना। आप देखें कि फिजिक्स की वैल्यू ज़्यादा स्प्रेड है, उसकी बॉक्स की लेंथ ज़्यादा बड़ी है, ठीक है, तो आप कहेंगे फिजिक्स डाटा इज मोर स्प्रेड देन हिस्ट्री। सो नेक्स्ट पार्ट, फिजिक्स marks are more spread than history. That's it. Okay, students, Allah Hafiz.